السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول ولی عہد قسط نمبر 15۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ برصغیر کے شمال میں بلند پہاڑوں کا وہ سلسلہ جو قراقرم کی بلندیوں سے شمال مشرقی ایجنسی تک شرقاً غرباً ہزاروں میل میں پھیلا ہے، ڈھلانوں کے قریب گھنے جنگلوں اور خوفناک وادیوں پر مشتمل تھا۔ بعض جگہ پر پہاڑ چٹیل اور سنگلاخ تھے، لیکن اکثر مقامات پر درختوں کا گھنا سلسلہ ہزاروں فٹ تک بلندیوں تک چلا گیا تھا۔ پہاڑوں کے دامن میں بھی جنگل میلوں تک میدانی علاقوں میں پھیلتے چلے گئے تھے، جہاں درندوں کا راج تھا۔ چانگر سے 100 میل شمال کی جانب جنگلوں کے کئی سلسلے پھیلے تھے، جن میں بعض 8-8 10-10 میل تک طویل تھے، لیکن سب سے خوفناک اور پرخطر جگنا بند تھا، جس کے طول و عرض کا تخمینہ بھی حیرت انگیز تھا، کیونکہ ایک فرانسیسی دشتنورد کے بقول یہ خطرناک جنگل 70-80 میل طویل اور 30-35 میل عریض رہا ہوگا۔ لیکن ضروری نہیں کہ یہ تخمینہ درست ہو، کیونکہ مشرقی سمت دشوار گزار راستوں کی وجہ سے اس جنگل میں جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ شہزادہ قاسم نے جگنا بند سے 10-12 کوس ادھر روہی نالا پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ کچھ فاصلہ سے جنگل قریباً 2 میل تک شمال مشرقی سمت نکل گیا تھا، دراصل جگنا بند ہی کا ایک حصہ تھا، لیکن درمیان میں چونکہ 7-8 میل کا میدان حائل تھا جو جھاڑیوں، کائی اور لمبی لمبی گھاس سے اٹا پڑا تھا، لہٰذا اس نے ایک الگ تھلگ جنگل کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ولی عہد نے پڑاؤ سے نکل کر اسی جنگل کا رخ کیا تھا۔ کلی سے جب آدم خور کو شکار کر کے لوٹا تھا، اس کی طبیعت بے چین اور اداس تھی، اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل بپا تھی۔ تصور اسے بار بار اس خانہ بدوش حسینہ کے تعاقب میں لے نکلتا تھا، جس کے نور و جمال کی ایک جھلک دیوانہ کر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس پاگل پن سے کچھ حاصل نہ ہوگا، کہاں ایک وارث تخت و تاج اور کہاں ایک خانہ بدوش لڑکی۔ یقیناً سلطنت کی حکمتیں اور حکومتوں کی مصلحتیں ان کے درمیان ناقابل عبور خلیجوں کی طرح حائل رہیں گی۔ گہری وسیع اور اس ندی کے کناروں کے مانند ہمیشہ دور ہی دور رہیں گے اور کبھی ایک دوسرے سے مل نہ سکیں گے۔ اس کے باوجود شہزادہ ایک پل کے لیے بھی اس کے خیال سے غافل نہ ہو سکا تھا۔ اس کے سینے میں ایک نامعلوم سی خبش، ایک لذت آفرین چبھن، ایک میٹھی سی کسک انگڑائیاں لے رہی تھی، جو خون میں رچ بس کر اس کے سارے جسم میں دوڑنے لگی تھی، اور اب بیٹھے بیٹھے ہرنوں کی شکار پر نکل آیا تھا۔ 20 سال کی عمر میں اسے 20 ہرن چکارے اور پاڑے شکار کیے تھے۔ ان کی کھالیں اپنے قصر میں سجائی تھی، لیکن آج وہ شکار کی نیت سے نہیں، چکاروں اور 12 سنگوں کو زندہ گرفتار کرنے کے ارادے سے نکلا تھا۔ بختیار مرزا اس کا مصاحب بھی تھا، بے تکلف دوست بھی۔ اس نے شہزادی کی دیوانگی کا مذاق اڑایا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ ہوا میں تلواریں مارنے سے کچھ حاصل نہیں۔ اگر اس نے کوئی چیتل پکڑ بھی لیا تو کیا اسے شہزادی کا پتہ بتا سکے گا؟ لیکن ولی عہد نے باتوں کی طرف دھیان ہی کب دیا، وہ تو اپنے خیالوں میں مگن تھا۔ ہرن اور چکارے عموماً گھاس کے جنگل میں پھرتے اور نالے پر پانی پینے آتے تھے۔ وہ گھنے درختوں کو دائیں سمجھ چھوڑتے روہی نالے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے، مگر 20 میل چلنے کے بعد نالا جنگلے کی سمت مڑتا نظر آیا۔ دوسرے کنارے پر ایک وادی نشیب میں واقع تھی، جو ہری بھری دھوپ سے اٹی پڑی تھی، تاکہ عبور کر کے وہ نشیب میں اترتے چلے گئے۔ اندازہ غلط نہیں تھا، وادی میں دور چند خوبصورت چیتل گھاس چر رہے تھے۔ کمندر سنبھال کر 2 مختلف سمتوں سے ان کی طرف لپکے، مگر ٹاپو کی آواز سن کر جاوند برت گئے، اور جدھر کسی کا منہ اٹھا چوکڑے بھرتا ہوا ہوا ہو گیا۔ شہزادے نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک چیتل کے سر پر جا کر کمند پھینک دی۔ چیتل اگر فوراً ہی جنگل کی طرف مڑ جاتا تو کمند کے حلق میں آ چکا ہوتا۔ ایک ٹیلے کو پھاند کر وہ کوندے کی مانے لپکتا چلا گیا اور گھنے جنگل میں جا گھسا۔ شہزادہ بھی اس کے تعاقب میں گھوڑا اڑائے لے گیا۔ بختیار مرزا نے ولی عہد کو جنگل میں گھستے دیکھا تو ہرن کا خیال چھوڑ کر وہ بھی اسی طرف لپکا۔ جنگل خاصا گھنا تھا۔ شہزادہ بڑی مہارت اور چابک دستی سے گھوڑے کو موڑے بغیر درختوں کے درمیان سے خلا سے گزارتا چلا گیا، مگر 3-4 فرلانگ کے بعد اسے مجبوراً رکنا پڑا۔ آگے گھنے درختوں کی ایک سرے سے گلے ملتی شاخوں اور گھنی جھاڑیوں میں راستہ روک لیا تھا۔ اس ذخیرے کے پرے قریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر کھلے میدان کے آثار نظر آ رہے تھے، لیکن ذخیرے کو عبور کرنے کے لیے طویل چکر کاٹنا پڑتا تھا۔ چیتل تو نکل ہی گیا اور اب کسی تلاش بے سود تھی، مگر شہزادہ کا خیال تھا کہ اس جنگل کی عقبی وادی میں یقیناً ہرنوں کی ڈاریں ملیں گی۔ بختیار بھی آ پہنچا۔ پھر وہ دونوں ذخیرے کے ساتھ ساتھ چلتے اس جگہ پر آگے جہاں سے بآسانی آگے بڑھ سکتے تھے۔ جنگل میں خرگوشوں اور لومڑیوں کے علاوہ اور کوئی جانور دکھائی نہ دیا۔ جنگل کے وسط میں ایک چشمہ بہہ رہا تھا، جہاں انہوں نے گھوڑوں کو پانی پلایا۔ اچانک درختوں کے درمیان کہیں سے گانے کی سریلی آواز ابھری اور وہ چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت سی لڑکیاں مل کر گا رہی ہوں اور ان کی ہم آہنگ آواز ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی جنگل کی فضا میں جادو جگا رہی ہے۔ وہ محسوس کرنے لگے گویا خواب دیکھ رہے ہیں یا بھٹکے ہوئے کسی دشتے طلسم میں آ نکلے ہیں، جہاں ندیدہ پریاں رقص و نغمہ سے مل کے طلسمات کا دل بہلا رہی ہیں۔ جنگل کے آس پاس کئی میل تک آبادی کے آثار نہ تھے۔ شمالی سمت نشیبی وادی میں بھی جو پہاڑی ڈھلان کے مانند غالباً کئی کوس تک چلی گئی تھی، انہیں کوئی بستی یا چراگاہ نظر نہ آئی تھی، بلکہ 7-8 میل پہلے جگنا بند کا مہیب اور خطرناک سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ پھر اس جنگل میں متعدد ہم آہنگ سریلی آوازیں اگر کسی سحر و طلسم کا اعجاز نہیں تو اور کیا تھا؟
बख्तियार मिर्जा ने मज़ाक़ खेज़ अंदाज में अपनी आंखें मली, फिर दीदे ने चाहकर इधर उधर देखा, लेकिन इसकी मतलाशी निगाहें मायूस लौट आई। हद नजर तक जंगल में किसी जानवर को वजूद भी दिखाई न दे सका। इंतहा तज्जुब से सिर्फ अपने शाने सुकेड़ कर रह गया। पूर्वा के दोष पर उड़ती और फजा के सीने में तैरती लहराती रक्स करती आवाज तिलिस्मी ज़ेरो बम के साथ इनकी समाज से टकरा रही थी। जैसे शगुफों का सीना चाक करके खुशियों का कारवां महवे प्रवास होता है, जैसे किसी अनदेखे माबद में पुरस्कार घंटियां बज रही हूँ या आसमानी रक्कासा ज़ोहरा अपने पाँव में सितारों की झांझनें बांधे नाच रही हो। ये सहर आफरी आवाज कैसी थी? यकलख्त बख्तियार मिर्जा ने दूर बांसों के झुंड की तरफ उंगली उठाई और वली ने बाग उठा दी। घोड़ों ने एक ही जश्न चश्मा बूर किया और बांसों के झुंड की जानिब उड़ते चले गए। 1.5-2 फरलांग का चक्कर काटकर वे पुरहा-बहार वादी में जा पहुंचे, जहाँ जंगली नसरन की झाड़ियां और झाऊ के दरख्तों के दरमियान नरम घास के एक शादाब की पर 10-12 खानबदोश लड़कियां हाथों में हाथ डाले नाच रही थी। इनके लबों पर एक पहाड़ी गीत के दिलकश लय मचल रही थी। शहजादा ने ठिठक कर घोड़े की बाग खींच ली। होंठों पर एक तहय्युरज़ार सिसकारी तड़पी और फरते हरत से आंखें खुली की खुली रह गई। खानाबदोश लड़कियों में इसने शहजादी की झलक देख ली थी, जो सुर्ख लहंगा पहने और पाँव में चांदी की झांझनें बांधे इनके दरमियान रक्स कर रही थी। टापों की आवाज सुनते ही लड़कियों ने बदहवास होकर अजनबी सवारों की तरफ देखा, जो राजनों की तरह नागहां दरख्तों की ओर से नमूदार हुए थे। इनके होंठों पर गीत की लय टूट गई, पाँव की गर्दिश थम गई, रक्स का दायरा टूट गया। वो खूब व दहशत से चीखती चिल्लाती एक तरफ भाग निकली और झाऊ के दरख्तों के पीछे गायब हो गई। सिर्फ शहजादी शशतर खड़ी इन्हें देखती रही। इसकी आंखों से सहरो तिलिस्म की वही शवाएं फूट रही थी जो शहजादा कासिम के सीने में उतर गई थी। हुस्न नहायत की वो तजल्ली जो अक्ल होश को फूंकती चली गई थी, फिर इसकी निगाहों को खीरा कर रही थी। चांदनगर के वारिस तख्तो ताज ने महसूस किया कि इसके बदन में बिजली सी कौन रही है। नब्जों में फरहत सा ठंडी आग दौड़ने लगी है और इस नागहानी गैर मुतवक्को मुलाकात ने इस पर शादी मर किसी कैफियत तारी कर दी है। खानाबदोश हसीना हौले हौले चलती सवारों की तरफ बढ़ी। इसके पाँव में झांझनों की आवाज मौसीकी की बिखेरती हुई उभरी। बहादुर इसके होंठों पर फूलों की सी छागल से बजी उठी। शहजादा घोड़े से उतरकर इसके करीब आ गया। शहजादी के लबों पर तबस्सुम की लहर थरथराई और वो मायूस अंदाज में बोली, क्या आज फिर किसी शेर का पीछा कर रहे हो? बहादुर तो खामोश रहा, लेकिन गुलबाज ने जुबानी अल्फाज में जवाब दिया, नहीं, आज हम एक हिरनी की तलाश में आए हैं, मगर इस जंगल में तो लोमड़े ही मिली, हमें देखते ही देखते भाग जाती हैं बुज़दिल कहीं की। शहजादी लोमड़ियों की तर्ज पर इसके तो मुतवज्जो हुई। किसी खुशफहमी में ना रहना, मेरी सहेलियां तुम्हारी खातिर तवाज़ु के लिए हथियार लेने गई हैं और बस आती ही होंगी। गुलबाज ने तज्जुब से पलकें झपकाई। क्या तुम्हारे यहाँ मेहमानों की खातिर तवाज़े हथियारों से की जाती है? वाह, न जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, मगर जान पहचान तो हो चुकी थी। आज हम मेहमान बनकर आए हैं। तुम्हें क्या मालूम कि मैं इस जंगल में रहती हूँ? ये शहजादा अली से पूछो जो मुझे खींच कर ला रहे हैं। फिर फौरन अपने हमाकत पर बौखला गया। शहजादा अली के अल्फाज बेख्तियार जुबान से टपक पड़े थे। खानाबदोश हसीना की पेशानी पर हैरत की लकीर खिंच गई। शहजादा अली, मेरा मतलब है मुहब्बत, यानी दिल का शहजादा, बादशाह, शहंशाह वगैरह जो भी कह लो। हाँ, वो कहते हैं सल्तनत इश्क का, जहांगीर मुल्क मोहब्बत का शाहजहान। और क्या बात हुई? खानाबदोश लड़की झुंझुलाई। बात यह हुई कि तुम शहजादी हो, ये शहजादा, तुम जंगल की रानी, ये बेमुल्क का नवाब। शहजादी बेख्तियार मुस्कुरा दी, वलीअहद की तरफ देखने लगी। तुम ठीक कहते थे, तुम्हारा दोस्त वाकई दिलचस्प आदमी है, मगर मैं आदमी कब हूँ? फिर क्या हो, एक नौजवान। इस जवाब पर वो खिलखिलाकर हंस दी। इसकी आवाज दूर तक खनकती चली गई, जैसे झांझनें एक चनाके के साथ टूटकर इधर उधर बिखर गई हूँ। जब हंसी थमी, शहजादा ने इसकी जादूगर आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम इसी जंगल में रहती हो? शहजादी ने बताया, सरदार जग्गू का कबीला बहुत वसी और दूर दूर तक फैला हुआ है। इसके कई गिरोह हैं, हर गिरोह का एक अलग सरदार है जो जग्गू से हदायत हासिल करता है। इस जंगल में भी एक गिरोह कई साल से डेरे डाले पड़ा है। गढ़ी रंबूर जाने से पहले सरदार यही रहता था, मगर इसके बाद सरदार सुलेमान पूरे कबीले पर हुकूमत करता था। शुमाली जंगलों में रहने के बावजूद जहाँ भीलों, गोंदों, पासियों, काछियों, कोहलियों और मेघवाड़ों की अक्सरियत है और राजपूत भी इन्हीं की बोली बोलते हैं, मगर खानाबदोश बस्ती हिंद की जुबान बोलते हैं। ahकाम बड़े सख्त हैं। शहजादा और बख्तियार तज्जुब से इसकी बातें सुनते रहे। जग्गू का कबीला कई हजार अफराद पर मुश्तमिल था और इस बार से शहजादी वाकई इस पे बामुसम्मा थी। इसका बाप हजारों खानाबदोशों पर हुकूमत करता था। इसी असना में झाड़ू की ओर से एक खानाबदोश लड़की का चेहरा नमूदार हुआ, जो छुपकर सूरत का जायजा ले रही थी। बख्तियार की होशियार निगाहों ने फौरन देख लो हाथ लहरा के बेतकल्लुफी से बोला, आओ आओ, शर्माने की कोई बात नहीं, हम कोई गैर थोड़ी हैं। शहजादी और वलीअहद की नजरें एक साथ लड़की पर पड़ी, जो झाड़ियों की अकम में खड़ी हो गई थी। खानाबदोश हसीना से देखते ही बोली, ये मेरी सेरी चमकी है, सरदार सुलेमान की बेटी। चमकी, आ जाओ।
चमकी घबराती हिचकिचाती आगे बढ़ी। हाथ में चौड़े फल की कुल्हाड़ी चमक रही थी। जब करीब आई तो बख्तियार मिर्जा खौफजदा लहजे में कहने लगा, चमक दमक तो वाकई खूब है, लेकिन ये कुल्हाड़ी क्यों उठा लाई? क्या मिसवाके काटने आई है? चमकी ने कहरालू निगाहों से इसे देखा। मिसवाके नहीं, तुम्हारी नाखें काटने आई हूं। कौन हो तुम? जुबान भी खूब चलती है। इस पर चमकी बड़ा फरोख्ता हो गई, कड़क कर बोली, जान प्यारी तो जिधर से उधर ही लौट जाओ, वरना। चमकी, शहजादी की आवाज गूंजी। फिर इसने तेज नजरों से लड़की की तरफ देखा और आंखों में कुछ बूझा। चमकी ने बताया, गोमी, राबी, रोमा, सारा और नोमी यहाँ सीधे डेरे पर गई और उन्होंने सरदार को बताया कि 2 शिकारियों ने शहजादी को घेर लिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये कहकर शहजादी यगलख्त वलीअहद की तरफ घूम गई। बहादुर, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। अगर किसी खानाबदोश ने देख लिया तो वापस न जा सकोगे। मगर हमने खानाबदोशों का क्या बिगाड़ा है? शहजादी की हसीनों से आंखों में खौफ की लहर चमक रही थी। आवाज की लर्जिश दिली इसराब का पता दे रही थी। तुम नहीं जानते, ये जंगल खानाबदोशों का घर है। कोई गैर आदमी इनके घर में दाखिल नहीं हो सकता। वो अपनी लड़कियों को गैर मर्दों से मिलने नहीं देते। बस तुम चले जाओ। मगर हम तो कफन साथ लेकर आए थे। ये बख्तियार की आवाज थी। शहजादी मुस्तरब लहजे में बोली, ये मजाक का वक्त नहीं गुलबाज। अपने दोस्त को लेकर निकल जाओ। गोमी और राबी इन्हें यकीनन अपने साथ लेकर आ रही होंगी। वो कुल्हाड़ी की जुबान से गुफ्तगू करते हैं। फिर तो मैं इनका इंतजार करूंगा। शहजादे के लहजे में सुकून और ठहराव था। खानाबदोश हसीना तड़प कर रह गई। तुम समझते क्यों नहीं? अगर उन्होंने मुझे तुमसे गुफ्तगू करते देख लिया तो मेरी भी शामत आ जाएगी। तुम तो शायद लड़ते मरते निकल ही जाओ, लेकिन नहीं, मौत की तरह खामोशी से घेरा डालते हैं। अभी वक्त है, मेरी खातिर निकल जाओ। फिर मुलाकात कब होगी? शहजादी एक सानिया खामोश रही, फिर उंगली से एक तरफ इशारा करते हुए आवाज में बोली, कल इस तलाव के पास मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शहजादा एक ही जश्न में घोड़े पर था। बख्तियार मिर्जा ने चमकी की तरफ देखा और कहा, चमकी, तुम भी जरूर आना। कल मैं तुम्हारी किस्मत का हाल बताऊंगा। कुल्हाड़ी साथ न लाना। दूसरे लम्हे वो भी घोड़े की पूंछ पर नजर आया। दोनों बिजली के कोंदों की तरफ लपकते चले गए और बांसों के झुंड की बिजली इस तालाब की तरफ लपके जिस वादी के नशेब में वाक़ था। शहजादी थोड़ी देर इन्हें देखती रही, फिर तेजी एक तरफ चल दी। चलते चलते चमकी ने पूछा, ये कौन लोग थे? कल इन्हीं से पूछ लेना। वो यूं उछल गए जैसे सचमुच इसे बिच्छू ने काट लिया हो। क्या वो कल भी आने की जुर्रत करेंगे? चमकी, किसी गलत फहमी में मुब्तला हो। वो इतने बहादुर हैं कि तुम्हें रात को डेरे से उठाकर भी ले जाए। इसके जवाब में चमकी का कहका कांच की तरह टूटकर बिखरा और हंसी दूर तक उड़ती चली गई। मगर दूसरे लम्हे इसकी आवाज हलक में फंसने लगी। शहजादी कह रही थी, वो चांदनगर के शाही फौज की सिपाही और मौत की शिकारी है। जगना बन का आदमखोर तन्हा बहादुर ने मारा था। चमकी से हैरत पाश नजरों से देख रही थी। कबीले का सबसे बहादुर जवान काशू, जिसने एक मरतबा भारी रीछ से लड़ते हुए इसके जबड़े चीर दिए थे, 10 खानाबदोश बहादुरों को जलू में लिए आंधी की तरह उड़ता चला आया। सबके सब चौड़े फल की कुल्हाड़ियों से मुसल्ला और सख्त मुश्तइल थे। बिलखुसूस काशू की आंखों में तो कोंदे लपक रहे थे और वैसे दरिंदों की मानद गुर्राता, जोश और गुस्सा में कांपता, जलजल तूफान की मानिद आ रहा था। डेरे के चौगिर्द फैली कच्ची दीवार से गुजरकर तेजी से बांसों के झुंड की तरफ लपका। गुलो नसरन की वादी, जहाँ खानाबदोश लड़कियां सैर व तफरीह के लिए निकल जाती थी, इसी समत थी। लेकिन अभी वादी से निस पौन फरलांग दूरी तक निगाहों के सामने बिजली सी कूद के ठिठक कर रुक गया। शहजादी और चमकी बिल्कुल इसके करीब आ पहुंची थी। काशू की आवाज बादल की मानिक गरजी, कहाँ है वो आदमी? शहजादी ने बड़ी बेपरवाही से पूछा, कौन आदमी? वही शिकारी जो घोड़ों पर सवार वादी में आ पहुंचे थे। शिकारी थे, जिधर से उधर को चले गए। वो वादी में क्यों आए थे? शहजादी ने कहरोलू नजरों से इसे देखा, फिर जवाब दिया, मैं नहीं जानती, तुम्हें मिल जाए तो पूछ लेना। काशू ने इसके तंज को भांप लिया, लेकिन बदस्तूर इसी लहजे में बोला, उन्होंने तुम्हारा रास्ता काटा था, तुमसे उलझने की कोशिश की थी। काशू, तुम जानते हो मुझसे उलझने का इंजाम क्या हुआ करता है? क्यों इस कदर चमक रहे हो? शिकारी तो जा चुके। काशू ने शोला अफकन नजरों से देखा, अगर वो ना चुके होते तो इनकी लाशें गिरा देता। मुझसे उलझने और निमटे बगैर कोई शख्स तुम्हारा रास्ता नहीं काट सकता। क्यों? ये सरदार का फैसला है, जुबान बंद रखो। ये कहकर शहजादी ने चमकी का हाथ पकड़ लिया और बड़ी तेजी से कतरा कर निकल गई। काशू इसके साथी देखते ही रह गए। आज तक कबीले की किसी लड़की ने काशू के साथ तौहीन आमेज़ सलूक न किया था, लेकिन शहजादी सरदार जग्गू की बेटी थी और काशू, जिसका उम्मीदवार भी था, खून के घूंट पीकर रह गया। शाम ने जंगल पर तारीक मटियाले पर फैला दिए थे। कोहस्तान की खून को ठंडी हवाओं की लहर तेज होती जा रही थी। इसी सर्द और तारीक झटपटे में सरदार जग्गू की जमाल आफरीन लड़की किसी बावकर शहजादी की तरह आंचल उड़ाती दरख्तों और शाखों की ओट में गायब हो रही थी। काशू अभी तक गुमसुम खड़ा था, गोया इसे सांप सूंघ गया हो। अचानक एक खतरे का इजहार किया। लोंडिया तो पट्टे पर हाथ नहीं रखने देती, बहुत तेज है, न जाने सरदार क्या पढ़ा सिखा लाया है।
गड़ी में रहकर मिजाज बिगड़ गया इसका। दूसरा कहने लगा, यहाँ रही तो 8-10 रोज में तीर की तरह सीधी हो जाएगी। अगर वो सरदार की बेटी है तो काशू भी कम नहीं। ऐसा गबरू पूरे कबीले में नहीं मिलेगा। सरदार जग्गू भी इसे बेटों की तमानियत अजीज रखता है। काशू ने फख्र से सर उठाया, लेकिन इसका ज़हन फिक्र अंदेशा के बोझ महसूस कर रहा था। डूबे डूबे तशवीश अंगेज लहजे में बोला, ये बात नहीं बाली, मुझे तो कुछ दूसरे ही तेवर नजर आ रहे हैं। सोचता हूँ कहीं वो शिकारी शहजादी से मिलने नहीं आए थे। क्या बात करते हो काशू? बाली ने अपना सेहतमंद चौड़ा सीना तानकर जवाब दिया, किसी माई के लाल में हौसला है कि वो शेरों की किचार में पाँव भी रख जाए। शहजादी कल तो आई है, या ऐसे कौन सा शिकारी मिलने आएगा? मेरा ख्याल है चांदनगर के भीड़ सवार भटकते हुए निकले होंगे। वो करीबी तो खैमाजन है। हो सकता है मेरा वहम गलत हो, मगर बाली दिल यूं ही खतरे की आवाज नहीं देता, कोई भेद जरूर है। बाली भी कुछ सोचने लगा, फिर बोला, शहजादी पर खुफिया निगरानी रखो, सारा भेद खुल जाएगा। काशू उछल गया, ठीक है, मैं आज ही इसकी निगरानी शुरू कर दूंगा। काशू ने बाली के हाथ पर हाथ मारा, फिर तेजी से मुड़ा और आंधी की लड़खड़ाते झोंके की मानिंद खानाबदोशों के हमरा इस पतली से पगडंडी पर हो लिया, जो मुड़े तुड़े दरख्तों के दरमियान नागल की तरह बल खाती डेरे में चली गई थी। दूर शाम के अंधेरों में चूल्हों और तंदूरों के धुएं की बुलंद होती लहरें जंगल में जिंदगी का ऐलान कर रही थी। दूसरे रोज शहजादा कासिम और बख्तियार मिर्जा सरे शामी खैमागाह से निकले और जंगल की तरफ हो लिए। आज भी कोई गुलाम सिपाही और मुहाफिज साथ न था। भील सरदार मंसूर और मीरशगार बख्शी ने रुख्सत किया, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल दी। फिर मंसूर सरगोशी करते बोला, आज सरकार इस समान जात रहे, रात हो गई। कहा सरकार, अंधेरे में खेले जाइयो। अंधेरे में जवान शिकार खेलने नहीं, खुद शिकार होने जाया करते हैं। मीर शिकार की बात सुनकर भील सरदार दम खुद रह गया। कहा, बोलो हो मीर जी, कोई हसीन शिकार मालूम होता है मंसूर काका? मंसूर एक लम्हा कुछ सोचता, फिर फिक्रमंद सी आवाज में कहने लगा, पर इस जंगल भीतर कौन राजकुमारी बसे है जिससे सरकार मिलन जात हैं? कोई और ही भेद हो गए। दोनों मुसाहिब अपना अपना ख्याल जाहिर करते खैमागाह में लौट आए। बख्शी तो छूलदारों के साथ साथ चलता शाही सरे पर्दा की तरफ निकल गया, जहाँ मशालें रोशन हो चुकी थी। मगर भील सरदार अस्तबल के करीब ही रुक गया। जब मीर शिकार 15-16 कदम आगे जा चुका तो मंसूर बेलियासी फुर्ती के साथ थान की तरफ लपका। इसने पलानों के ढेर से एक नुमंदा उठाया और आगे बढ़कर एक स्याह घोड़े पर कस दिया। फिर नेजा खींचकर उछला और घोड़े पर सवार हो गया। सायों में छुपता सिपाहियों की नजरों से बचता वो आहिस्ता आहिस्ता किनारों की तरफ खिसक रहा था। तलायगर सवारी इसके हुक्म से सरे शामी ने पौन फरलांग के फासला पर खैमागाह के गिर्द घूमना शुरू कर देते थे। मंसूर एक ऊंची झाड़ी की ओट में खड़ा इनका इंतजार करता रहा। जब वो बर्छी की आवाज पैदा करते आगे बढ़ गए, इसने घोड़े को हल्की सी एड़ लगाकर नाला अबूर किया और जंगल की जानिब हो लिया। कायनात पर कसीफ अंधेरे का गुलाब चढ़ा था और इस वहशत खेज तारीख रात में भाई भाई करता जंगल होल पैदा कर रहा था। आसमान पर सितारों की कंदीलें झिलमिला रही थी। रात के राही बेकरार ख्वाबें अपने मुतय्यन रास्तों पर गर्दिश कर रहे थे, लेकिन इनकी मध्यम से रोशनी जंगल के रास्तों का तय्युम करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन ही था। अंधेरे में दरख्तों की शापों सांपों की माने झूल रही थी, जिनसे कदम करने पर उलझना पड़ता था। शायद अंदाजा ही था कि भील सरदार ने आज वाकई कोई खोया कोई सुराग पा लिया था। अफ्रीकी चीते की वो सूंघदा अंधेरे में सीना में नजरा गाड़ता, कोई आहट और आवाज पैदा किए बगैर वो जंगल में घुसता चला गया। घोड़े की बाग और नेजे पर इसकी गिरफ्त मजबूत थी और तन्हा हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार था। चारों तरफ होलनाक दहशतंगेज सन्नाटा तारी था। शुमाल की तरफ ऊंचे ऊंचे सरबफलक पहाड़ अपने पथरीले सीने में इब्तदाई आफरीनश के सैकड़ों राज छुपाए अनगिन सदियों से मौत की दीवारों की तरह साकित जामिद खड़े थे। इन पहाड़ों की असली खामोशियों की गोद में परवरिश पाने वाला सन्नाटा दामने कोह की मुहिब वादियों और मीलों तक फैले भयानक जंगलों में मौत की तरह हुक्मरानी करता था। ऊंचे कोहस्तानों के अजीम और तवील सिलसिला से 18-20 मील दूर इस जंगल पर भी वही हैबत आफरीन और भयानक सन्नाटा तारी था जिसने इंसानी तारीख पर हिमालय की अजमत और हैबत की मोहरें सब की थी। हर समत हू का आलम था। शुमाली हवाओं की तूफानी सरसराहटें और लातादार जीवरों की झाएं झाएं की मुसलसल आवाज अंधेरे की वहशत और सन्नाटे की दहशत में इजाफा कर रही थी। एक नामालूम से खौफने जंगल की तारीकी में कई भयानक रूप धार लिए थे। अगर झाड़ियों में कोई चूहा या खरगोश पिदकता तो यूं मालूम होता जैसे कोई दरिंदा अपने शिकार पर झपट पड़ा हो। शहजादा कासिम और बख्तियार मिर्जा चीते की होशियारी मुस्तदी के साथ दरख्तों के दरमियान चलते झाड़ू से बचते इस चश्मा पर आ पहुंचे जो खानाबदोशों का मस्कन हद समझा जाता था। यहाँ से बांसों के झुंड की तरफ एक पतली से पगडंडी जाती थी जो अंधेरे में सांप की मानी लेटी थी, लेकिन बांसों के झुंड की समत बढ़ने के बजाय वो चश्मे के साथ साथ मगरिब की तरफ चलने लगे। घोड़ों की रफ्तार मध्यम थी, शायद इसलिए टापू की आवाज बुलंद न हुई। जानवर बार बार कनौतियां बदलते और चुपचाप चले जाते। शहजादा खतरे से गाफिल ना था। इसका ख्याल था कि मुमकिन है कल के वाक़े के मद्देनजर खानाबदोश आज मुहताती रहे हों और दरख्तों की ओट में झाड़ियों में छुपकर जंगल की निगरानी कर रहे हों। इसलिए उन्होंने तालाब पर पहुंचने के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार किया था जो झाड़ियों और घने दरख्तों से दूर ही था।
कल जब शहजादी रुखसत हुए तो तलाव के रास्ते में लौटते थे, गोया ये रास्ता देखा भाला था। चश्मा के किनारों पर बात जगह लंबी लंबी घास और काई के जखीरे थे, मगर इनकी तेज निगाहें इस अंधेरे में भी दूर तक देख सकती थी। चश्मे के किनारे किनारे 1.5-2 फरलांग चलने के बाद जब वो शुमाल मशरिक की तरफ मुड़े तो अचानक बख्तियार मिर्जा ने अपने घोड़े की लगाम खींच सरगोशी करते बोला, साहिब आलम, शायद हमारा ताकुब किया जा रहा है। कासिम ने भी घोड़ा रोक लिया। इसने तशवीश अंगेज निगाहों से अपने अक़ल में देखा, मगर कुछ नजर ना आ सका। तुम्हारा वहम में किसी को ताकुब करने की जरूरत क्या थी? फिर हम इस कदर मोहतात क्यों हैं? आखिर कोई खतरा तो जरूर है। तो मेरा मतलब नहीं समझे। अगर हम देख लिए जाते तो अंधेरे से आने वाला तीर कमान से निकल चुका होता। बख्तियार मिर्जा ने अपने नथने से गड़कर फिजा में सूंघा। मैं खतरे की बू सूंघ रहा हूँ। यकीनन हम देख लिए गए हैं। अभी मैंने अपने अक़ल में आहट सुनी। मेरी छठीस जाग रही है। कासिम ने एक लम्हा गौर किया, फिर कहने लगा, अभी तक हम पर हमला नहीं हुआ। अगर हम देख भी लिए गए तो घबराने का क्या फायदा? तलाव यहाँ से दूर नहीं। तुम होशियार रहो, खंजर संभाल कर रखो। यह कहकर इसने भी खंजर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और घोड़ा नशेब में डाल दिया। जंगल का यह हिस्सा ज्यादातर झाओ, जंगली भेड़ों और करेरों पर मुश्तमिल था। कुछ 2 फरलांग के फासले पर वो झील नुमा तालाब था, जिसके किनारे पर स्नूबरों ने साया डाल रखा था। खाना बदोश गालिबन पीने का पानी इसी तालाब से हासिल करते थे, क्योंकि कासिम ने कल ही देख लिया था कि इसके इर्द पत्थरों की 2-2.5 फीट ऊंची बाड़ बांधी गई थी, ताकि मवेशी जंगली जानवर पानी आलूदा न कर सके। तालाब के गहरे नशेब में वाक़ था। यह नशेब चश्मा के किनारे से शुरू हो गया था। चारों तरफ गहरा पुरस्रार सन्नाटा मुसल्लित था, जिसमें झींगरों की मौसीकी खौफ की लहर बनकर दौड़ रही थी और पानी की सतह पर सितारों के अक्स जुगनों की तरह थरथरा रहे थे। बख्तियार मिर्जा की हिफाजत में छोड़कर और इसे होशियार और मुस्तैद रहने की ताकीद करके शहजादा होले होले स्नूबरों के झुंड की तरफ चल दिया। जीव झाड़ों की ओर से निकला। जुनूब मशरिकी किनारे पर एक साया नजर आया। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो साया सरदार जग्गू की आफरीदा जमाल लड़की शहजादी के अलावा किसी का ना था। गालिबन खानाबदोश हसीना ने भी इसे पहचान लिया था। तेजी से उसी की तरफ लपके हुए दूसरे लम्हे वो हाथों में हाथ डाले खड़े थे। इनके होंठों पर खामोशी की मोहर, जिसमें एहसास कैफ की अजीब सी लर्जिश थी। शायद हुई दोनों एक दूसरे की दिल की धड़कनें सुन रहे थे। खामोशी की मोहर आखिर शहजादी ने तोड़ी। इसके जिस्म में इस तरह मुसरत की लहर दौड़ गई। बहादुर, तुम सचमुच बहादुर हो। कासिम इसका नाजुक हाथ थामे एक चट्टान पर बैठ गया। क्या तुम्हें यकीन था मैं आऊंगा? अगर यकीन न होता तो यहाँ क्यों आती? फिर यकलख्त उदास हुई निढाल सी नजर आने लगी। इसने बताया, काशू कल से मेरी टो में रहता है। मैंने अपने आसपास पुरस्कार साइयों की हरकत करती देखी है। आज भी जब डेरे से निकली कोई शख्स मेरा ताकुब कर रहा था। कोशिश के बावजूद किसी की शक्ल न देख सकी। बस चलते यूं लगा जैसे चंद नामालूम आंखें मुझे घूर रही हूँ। मैं बेमकसद इधर उधर फिरती रही, फिर डेरे को लौट गई। जब मैं झुग्गियों के दरमियान से गुजर रही थी, पुरस्कार ताकुब आप ही आप खत्म हो चुका था। कासिम हैरत और तज्जुब से उसकी बात सुनता रहा। फिर तुम यहाँ किस तरह पहुंची? जानवरों के खतरे की वजह से डेरे के इर्द गिर्द एक कच्ची दीवार खड़ी कर दी गई है, जिसमें 4 दरवाजे हैं। किसी ने मुझे दरवाजे से गुजरते नहीं देखा, क्योंकि मैं दीवार फांद कर यहाँ पहुंची हूँ। मगर ये काशू कौन है? क्या कबीले के किसी आदमी को सरदार की बेटी से उलझने का हौसला हो सकता है? काशू सरदार के सबसे अजीज और वफादार दोस्त जंदू का बेटा है, जो चंद साल पहले फोत हो गया था। इसके बाद काशू की तरबियत और परवरिश बाबा ने अपने जिम्मा ले ली थी। बाबा ही के प्यार ने इसे गुस्ताख बना दिया है। इसका मतलब है काशू तुम पर अपना हक समझता है। शहजादी खामोश हो गई, फिर इसने जवाब दिया, जिंदू चाचा मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं छोटी थी जब इसने बाबा से मुझे अपने बेटे के लिए मांगा था, लेकिन बाबा ने कह दिया वो मजबूरी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। वक्त खुद शहजादी की किस्मत का फैसला करेगा। ये कहकर खानाबदोश हसीना किसी गहरी सोच में डूब गई और कासिम का दिल पहलू में तेजी से धड़कने लगा। बख्तियार मिर्जा ने घोड़ों के रस्से एक दरख्त के तने से बांध दिए और बंदूक कंधे पर लटकाकर खंजर बकफ दबे कदमों इधर उधर फिरने किसी खतरे की टोह लेने लगा। अंधेरे में इसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थी। न जाने इसे एक ऐसा शुबा हो गया था कि चश्मा पर कोई पुरस्कार हस्ती उनका ताकुब कर रही थी। इसकी छठी हिस्स पूरी तरह बेदार थी। वो नथने सिकोड़ कर फिजा को सूंघ रहा था, जैसे खतरा फूल की बास बनकर इसके नथनों से आ टकराएगा, मगर दूर दूर तक किसी खतरे के आसार नजर न आते थे। जंगल का रवायती सन्नाटा होंक रहा था। सोचने लगा कहीं चश्मा पर किसी वहम ने इसे शुबे में न डाल दिया हो। ये सोचते हुए पलटा था कि अचानक बेबी कहीं खटका हुआ। फिर यूं लगा जैसे कोई झाड़ियों के दरमियान होली हरकत कर रहा हो। वो उछल कर मुड़ा। शुबह हकीकत का रूप धारने लगा था। 15-20 कदम के फासले पर तालाब के करीब झाड़ियां सरसराई। इसने बिजली की ऐसी तेजी के साथ बंदूक कंधे से उतारी, फिर खंजर को उंगलियों में तोड़ता दबे कदमों झाड़ी की तरफ लपका। लेकिन ये क्या हिमाकत है? मैं खड़ा हूँ और अगर वाकई दुश्मन घात लगा रहा है तो मुझे आसानी से निशाना बना सकता है। इसके ख्याल आते ही फौरन घास पर लेट गए और कोहने के बल रेंगने लगा। वो चाहता था खंजर या गोली चलाने के बजाय छलांग लगाकर दुश्मन पर जा पड़े और इसे दबोच ले।
चंद ही लम्हों में रेंगता वो झाड़ियों के पास जा पहुंचा। शायद दुश्मन अभी तक बेखबर और इससे 4-5 कदम के फासले पर दुबका पड़ा था। बख्तियार मिर्जा यहाँ से बआसानी इस पर छलांग लगा सकता था, लेकिन इधर मिर्जा ने जस भरने के लिए उठा। इधर इसी लम्हे को झाड़ियों में तनकर खड़ा हो गया और इसकी कुल्हाड़ी का फल कौदे की तरह चमका, लपका और साथ ही आवाज आई, कौन हो तुम? बख्तियार मिर्जा इसकी आवाज पहचान कर अपने ही जोर में रोकर झाड़ियों में गिरा। चमकी हाथ में कुल्हाड़ी थामे इसके सर पर खड़ी थी। वो कोयले को मसलता वो होले होले उठा, अरे चमकी तुम? चमकी ने भी बहादुर के साथी गुलबाज को पहचान लिया था। कुल्हाड़ी के फल की मानिद चमक कर बोली, क्यों, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? अब वो बिल्कुल लड़की के करीब खड़ा था और बंदूक फिर कंधे पर डाल ली थी। चमकी, आज घर जाकर अपना सदका उतारना। क्यों? मैं क्यों सदका उतारूं? शुक्र करो किस्मत अच्छी थी मेरी गोली से बच गई हो, वरना मैं तुम्हें लोमड़ी समझकर बंदूक दागने ही वाला था। चमकी सुनते ही आग गोला हो गई और कुल्हाड़ी लहराकर कहने लगी, किसी धोखे में न रहना, मैंने तुम जैसे कई गिदड़ मारे हैं। जवाब तुर्की में तुर्की था। बख्तियार खिसियाना होकर बोला, फिर मुझे भी मार दो, मैं किसी गिदड़ से कम नहीं। चमकी ने हैरतपाश नजरों से देखा, तुम मरना क्यों चाहते हो? आह क्या बताओ, वो गुलगीर आवाज में कहने लगा, मौलवी साहब कहते हैं अगर तुम मर गए तो दोज़ख में जाओगे, कोई तुम्हारा जनाजा भी नहीं पढ़ाएगा क्योंकि कमवारे हो। अब मैं क्या करूं? कुछ अरसा हुआ एक लड़की मिली, लेकिन वो 8 पैर हाथ में छुरा रखती थी। इसका बाप कसाई था। तुम्हें देखकर उम्मीद पैदा हुई कि शायद मेरे दिल की मुराद भर आए, लेकिन तुम कुल्हाड़ी लिए फिरती हो। चमकी ने घबरा कर कुल्हाड़ी पर हटा ली, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी। शहजादी और कासिम सुरबरू के नीचे बैठे राजो न्याज की बातों में मसरूफ थे कि अचानक शहजादी कहने लगी, अब चलना चाहिए बहादुर, बहुत देर हो गई, अगर किसी ने देख ले तो क़यामत टूट पड़ेगी। कासिम ने उठते हुए कहा, इन जंगलों में शिकार खेलने आया तो खुद शिकार हो गया हूँ, मगर इंजाम भी सोच लिया है, इंजाम की परवाह नहीं। खाना बदोश हसीना के चेहरे पर बेक वक्त इस्तराब इत्मीनान की कैफियत उभरी। वो जज्बा इश्क को भड़काते हुए बोली, ये भी जानते हो खाना बदोशों की अपनी कोई मंजिल नहीं होती, वो हवाओं की तरह आज़ाद और अपने ठिकाने बदलते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। सरदार के अलावा कोई नहीं जानता कि वो कब अपने खैमे उठा लें और किधर निकल जाए। कासिम ने हाथ बढ़ाकर इसकी स्याह जुल्फों में शाना किया, तुम कहीं भी चली जाओ, जंगल की हवा तुम्हारी जुल्फों की खुशबू मेरे पास पहुंचा देगी और मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बहादुर, फरतद मोहब्बत से शहजादी की आवाज दर्ज गई। कासिम ने अज खुद रफ्तगी की हालत में इसे सीने से चिमटाया और बोला, मैं कल फिर आऊंगा, यही इसी वक्त। होशियार रहना बहादुर, मैं तुम्हें खतरे से आगाह कर चुकी हूँ। इस जंगल में दरिंदों से ज्यादा खतरनाक आदमी रहते हैं, घबराओ नहीं, मैं भी शिकारी हूँ। फिर खाना बदोश सीना अपने हलक से एक अजीब सी आवाज निकाली, शायद ये चमकील की इशारा था। फिर तेजी से पत्थरों की बाढ़ के साथ साथ एक तरफ लपकती चली गई। शहजादे से रुखसत होकर घोड़ों की समझ चला। बख्तियार मिर्जा इसका मुंतजिर था और चमकी जा चुकी थी। अचानक तालाब के उस पार अंधेरे में एक खौफनाक निस्वानी चीख उठ गई। वो दोनों उछल कर रह गए। आवाज यकीनन शहजादी की थी। कासिम के कलेजे में छुरियां सी उतर गई, मगर वो लम्हा क़यामत का था जब बख्तियार मिर्जा की नजर अकबी झाड़ियों की तरफ उठी और झाड़ियों में इसने मुतअद्दिद कुल्हाड़ों और बच्चों को चमकते हुए देखने जो होले होले आगे बढ़ रहे थे। वो बौखला सा गया, साहिब आलम, दुश्मन ने हमें घेर लिया है। शहजादे ने भी खतरे को भाप लिया। वो दोनों बिजली ऐसी तेजी के साथ घोड़ों पर सवार हुए। 30-40 कदम के फासले पर झाड़ियों में भूचाल सा बरपा था। हमलावरों की तादाद काफी मालूम हो रही थी। उन्होंने इस वजह से घेरा डाला था कि कोई सवार जख्म खाए बगैर इनका हल्का को फांग नहीं सकता था। कासिम नेज़े पर हाथ की कील मजबूत करते हुए सरगोशी के लहजे में बोला, बंदूक न चलाना बख्तियार, वरना सारा कबीला जमा हो जाएगा। बख्तियार मिर्जा ने बंदूक फिर कंधे पर डाल ली। अब इसके हाथ में खंजर झूल रहा था। तसादुम नागजीत था। उन्होंने संभलकर घोड़ों को एड़ लगाई। साथ ही 1500 हमरावर शोर मचाते झाड़ू से निकले और हल्का बांधकर आगे बढ़े। घोड़े बिदककर पिछली टांगों पर खड़े हो गए। बख्तियार मिर्जा का खंजर हाथ से निकला और फजा में उड़ते हुए खाना बदोश के सीना में तराजू हो गया। रात के अंधेरे में एक लर्ज़ाखेज़ चीख जंगल के सन्नाटे को तोड़ती चली गई। खाना बदोशों ने मुश्तिल होकर नारा लगाया और एक साथ कई कुल्हाड़े और बच्चे फजा में तैर गए। लेकिन कासिम और बख्तियार शायद इस खतरनाक हमला से पहले ही आगाह थे। उन्होंने घोड़ों को ललकार कर फिर एड़ लगाई। जानवर 3-4 फीट उछलकर सीधे लपके और हमलावरों के सरों के ऊपर तैरते चले गए। साथ ही फजा चीखों से गूंजने लगी। कासिम और बख्तियार के नेज़े तो हमलावरों के पेट फाड़ते और उन्हें खून में गुस्ल देते हुए निकले थे। तालाब के किनारे क़यामत आफरीन शोर पपा था। झाड़ू में 3 लाशें गिरी थी। खाना बदो जो अंधेरों में आवाजों पर बच्चे फेंकने के आदी थे, अपनी नाकामी पर जख्मी भेड़ियों की माने गुर्राने चिल्लाने और शोर मचाते सवारों के पीछे लपके। बदकिस्मती इसी लम्हे बख्तियार के घोड़े ने अंधेरे में ठोकर खाई और घुटनों के बल गिरा। उधर शहजादा कासिम को एक हैरतअंगेज वाक़े से 2-4 होना पड़ा। हमलावरों को हल्का तोड़ता हुआ सीधा चला गया। आगे किसी हमला की तवक्को ना थी, लेकिन जो ही तालाब का चक्कर काट कर इसने घोड़ा बुलंदी पर डाला, झाव के दरख्तों से निकलकर एक कुल्हाड़ी इसके शाना पर आई
اگر بیختر گھوڑے کی پشت پر دھورا نہ ہو جاتا تو کلہاڑی کا تیز پھر اس کی گردن میں کھپ چکا ہوتا۔ وہ اس حملے سے بال بال بچا تھا کہ ایک سوار برچھا تانے سامنے آیا اور درندوں کی آواز میں کڑک کر بولا، تم کاشو سے نمٹے بغیر واپس نہیں جا سکتے شکاری۔ قاسم کاشو کا نام سن کر چونک اٹھا، پھر اس کا نیزہ بجلی کی طرح دشمن لپکا، مگر پھر فوراً گھوڑا موڑ کر وار بچایا اور شہزادہ پر برچھا پھینکنے کے لیے اسے اپنے زد میں لینے کے لیے آگے بڑھا۔ ان کے عقب میں متعدد حملہ کلہاڑے اور برچھے لہراتے بھاگے آتے تھے۔ بختیار مرزا اپنا گھوڑا سنبھال لیا، مگر خانہ بدوش اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ پھر ایک برچہ اڑتا ہوا اس کے پہلو کے کنارے آ لگا، اس نے فوراً وہی برچہ حملہ پر دے مارا۔ برچہ خانہ بدوش کی گردن پر پڑا اور شارک کاٹتا ہوا نکل گیا۔ وہ خود معمولی سا زخمی ہو چکا تھا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر لٹکاتے ہوئے باغ بلندی کی طرف موڑ دی۔ خانہ بدوش اس کے بھاگے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ کاشو نے کہرور نظر سے شہزادہ قاسم کی طرف دیکھا۔ برچہ پھینکنے کے لیے اسے اپنے زد پر لے چکا تھا اور اس حالت میں آج تک کوئی حریف بچ کر نہ گیا تھا۔ شہزادے نے اسے پیچھڑتے دیکھا اور خانہ بدوش کی چال کو سمجھے بغیر گھوڑا اس پر چڑھا دیا۔ یہی تو وہ لمحہ تھا جس کا کاشو کو انتظار تھا۔ اس نے پوری قوت سے بازو گھمایا، برچہ پھینکنے ہی والا تھا کہ عقب سے ایک نیزے کی پسلیوں میں اتر گیا اور وہ تیرا کر گھوڑے کی پیٹھ پر ڈھیر ہو گیا۔ قاسم یہ سمجھا کہ بختیار مرزا نے عقب سے اس پر حملہ کیا ہے، لیکن وہ تو پیچھے رہ گیا تھا۔ پھر شہزادہ نے ایک تیز سرگوشی کی آواز سنی، سرکار نکل چلیے۔ شہزادہ فرتے حیرت سے اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ یہ بھیل سردار منصور کاکا کی آواز تھی۔ دوسرے لمحے اس نے زخمی بختیار کو قریب آتے دیکھا۔ عقب میں 10 بار حملہ اور برچھے لہراتے آ رہے تھے۔ منصور کاکا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر فوراً آگے بڑھا۔ پھر بختیار مرزا اور حملہ آوروں کے درمیان حائل ہو کر بولا، میں بنجاروں کو روک رہا ہوں سرکار، آپ دونوں نکل جائیے۔ بھیل سردار کا لمبا نیزہ تیزی سے گھومنے لگا اور وہ گھوڑا بڑھاتا حملہ آوروں کے سروں پر جا پہنچا۔ خانہ بدوشوں نے یک بیک نعرہ لگایا، کئی برسے کلہاڑے فضا میں تیر گئے اور گھومتے لہراتے چکراتے ہوئے بھالے سے ٹکرا کر گرے۔ شہزادہ نے بختیار کا حال پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ بختیار مرزا کرا کر سیدھا ہو گیا، میری فکر نہ کیجیے صاحب عالم، یہاں سے نکل چلیے۔ میں نے ایک آدمی کو ڈیرے کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، اگر خانہ بدوش کمک لے آئے تم اس جنگل سے نکل نہ سکیں گے۔ پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ قاسم بھی اس کے پہلو پہ پہلو چلا۔ جب وہ جنگل سے نکل کر روہی نالہ پر آئے، رات دوسرے پہر سے گزر رہی تھی۔ ستاروں کا کارواں آگے نکل چکا تھا اور اندھیرے میں خیمہ گاہ کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اچانک عقب میں ٹاپوں کی آواز ابھری، پھر بھیل سردار گھوڑا اڑاتا ہوا ان کے سر پر آ پہنچا۔ اس کے بدن پر چند زخموں سے خون رس رہا تھا۔ دونوں نے تحیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ شہزادہ نے پوچھا، منصور کاکا تم جنگل میں کیا لینے گئے تھے؟ بس چلا گئی سرکار، اچھا ہی ہوئی۔ پھر اس نے فکر مندانہ لہجے میں بولا، آج سونے کی رات نہ ہی سرکار، جاگتے رہن میں بھلا ہے۔ کا خبر بنجارے کب ٹوٹ پڑے؟ شہزادہ اور بختیار چونک اٹھے۔ منصور کاکا نے بر وقت خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ خیمہ گاہ میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے طلائع گرز سواروں کو ہوشیار رہنے کی تاکید کی، جو بختیار اور منصور کاکا کو دیکھ کر دم بخود رہ گئے تھے۔ بھیل پہرے دار ساری رات جاگ تھے اور 3-4 ٹکڑوں میں منقسم ہو کر گھومتے رہے، مگر خانہ بدوشوں کے حملے کا اندیشہ غلط ہی ثابت ہوا۔ معزز سامعین حضرات، ولی عہد کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔